বিজেপি ছাড়ছেন, তৃণমূলে আস্থা রাখছেন জন বার্লা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরেই ডুয়ার্সের উন্নয়ন সম্ভব। বিজেপি রাজ্যের ক্ষমতায় কোনোদিনও আসবে না, তাই উন্নয়নের স্বার্থে রাজ্যের অভিভাবক মুখ্যমন্ত্রীর সাথে তিনি কথা বলতে চান। বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ তিনি পেয়েছেন, সেখানে তিনি যাবেন। তবে কবে কার হাত ধরে তৃণমূলে যোগ দেবেন তা এখনও স্পষ্ট করলেন না বার্লা। বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি ব্লকের সুভাষিনী চা বাগানের মাঠে সরকারি সুবিধা প্রদানের বিভিন্ন জনকল্যাণমুখী পরিষেবা প্রাপকদের হাতে তুলে দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। এই সরকারি অনুষ্ঠানে জন বার্লার যোগদান নিয়ে কদিন ধরেই জল্পনা চলছিল। জন বার্লার স্ত্রী দিল্লির এইমসে চিকিৎসাধীন। বিজেপির প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী জন বার্লা প্রায় 2 সপ্তাহ ধরে সেখানেই ছিলেন। বুধবার বিকেলে দিল্লি থেকে নিজের বাড়িতে ফিরে এসে তিনি জানান, রাজ্যের অভিভাবক হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার হাতেই শাসন ও প্রশাসনিক ক্ষমতা। ডুয়ার্সের উন্নয়ন কেবলমাত্র মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরেই করা সম্ভব। বিজেপি কোনোদিনও রাজ্যে ক্ষমতায় আসবে না। একদা গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা ও বিকাশ পরিষদের তার সহকর্মীরা এখন তৃণমূলের বিভিন্ন পদে রয়েছেন, ফলে তাদের সাথে কাজ করতে তার কোনো সমস্যাও হবে না। মুখ্যমন্ত্রীর পাঠানো চিঠি আলিপুরদুয়ারের ডিএমের মাধ্যমে তিনি পেয়েছেন, তাই মুখ্যমন্ত্রীর ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে দিল্লি থেকে ফিরে এসেছেন। উন্নয়ন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কথা বলতে চান, তবে তৃণমূলে কবে যোগ দেবেন এবং তার পরবর্তী পদক্ষেপ কী সে বিষয়ে এখনই কিছু মন্তব্য তিনি করতে চান না। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে সব স্পষ্ট হয়ে যাবে বলেই বার্লা জানালেন। এরই সাথে তিনি বলেন, সাংসদ থাকাকালীন বিরোধী তৃণমূল নয়, বরং বিজেপির অন্দর থেকে তিনি কাজ করার সময় বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছেন। আলিপুরদুয়ারে রেলওয়ের 200 বেডের হাসপাতাল তৈরি প্রায় চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিল। ফিতা কেটে কাজ শুরু কেবল বাকি ছিল। তবে এই কাজ হলে এলাকায় তার গুরুত্ব বেড়ে যাবে। তাই রাজ্যে বিজেপির বিরোধী দলনেতা এবং বর্তমানে আলিপুরদুয়ারের সাংসদ এই কাজের বিরোধিতা করেন। তারা দিল্লিকে ভুল বুঝিয়ে কাজ আটকে দেন। বার্লা অভিযোগ করে বলেন, বিজেপির সাথে থেকে এলাকার কোনো উন্নয়ন করা সম্ভব নয়, তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপরেই তিনি আস্থা রাখছেন। देखिए, सर्वप्रथम तो ये सरकारी प्रोग्राम है। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री ने हमें दावत दिया है थ्रू डीएम, तो हमको जाना उचित है, क्योंकि देखिए हम जेहेतु हम श्रमिक नेता हिसाब से और डुअर्स तरह का नेता हिसाब से, ट्राइबल लीडर हिसाब से, और यहाँ बहुत सारा समस्या है, चाहे बागान का समस्या है, चाहे श्रमिक का समस्या है, वन बागान का समस्या है ना, शिक्षा में है, हेल्थ में है, ट्राइबल इशू है। ये सारा इशू अगर कुछ डेवलपमेंट करना है तो आज हमारे मुख्यमंत्री, हम बोले इस राज्य का गार्जियन है। अब हम गार्जियन के पास, जब गार्जियन बुला रही है तो जाके ही उपस्थित होके ही हमारा समस्या को रखना चाहिए। रखने के लिए जाएंगे, अब बातचीत करेंगे और इस समस्या का समाधान करने के लिए हम चेष्टा करेंगे। मुख्यमंत्रीর সাথে কি আলাদা করে আপনার কথা হবে? देखिए, कल जाने के बाद में ही पता चलेगा। और डुअर्स का डेवलपमेंट का बात है, अगर नहीं बैठेंगे, टेबल टॉक नहीं करेंगे तो समस्या का समाधान कैसे होगा। इसीलिए हमारा जितना भी कार्यकर्ता है, चाहे बागान का श्रमिक लीडरशिप से भी बात किया है कि नहीं, हमें बैठना चाहिए और बातचीत करके हमारा समस्या का समाधान करना चाहिए। আপনি কি তৃণমূলে যোগ দিচ্ছেন তাহলে? देखिए, वो भविष्य की बात है, समय बताएगा आप लोग को, है ना। মানে কোনো প্রস্তাব কি এসেছে আপনার কাছে এই ব্যাপারে? पहले तो जाने दीजिए, कल जाए, बातचीत करें, है ना। पूरा टीम है, हम अकेले तो नहीं, जॉन बार्ला अकेले नहीं है। और राजनीति करना है तो डेवलपमेंट के लिए। देखिए, श्रमिक है, श्रमिक इशू है, चाय बागान का इशू है, ट्राइबल इशू है, और बहुत सारा समस्या है। डुअर्स डेवलपमेंट का समस्या है। डुअर्स किस प्रकार से डेवलपमेंट किया जाए, इसके लिए बैठना जरूरी है, क्योंकि सभी उन्हीं के हाथ में है। अगर नहीं बैठेंगे तो
तो समस्या का समाधान कैसे करेंगे? देखिए वो कल जाने के बाद ही आने वाला भविष्य ही बताएगा। आगे चलते चलिए, जरूर डूअर्स के लिए अच्छा है, ही सोच विचार करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपके समर्थक भी आपके साथ में जा रहे हैं? जरूर जरूर आने वाला दिन हम देखें, गिव एंड टेक तो पॉलिसी होना चाहिए ना। और श्रमिक तो कुछ चाहता है, यहाँ का जनता आशीर्वाद देता है, तो कुछ आशा और भरोसा के साथ ही हमसे जुड़ा हुआ था। अगर वो हम पूरा नहीं कर पाएंगे तो श्रमिक तो हमसे नहीं जुड़ेंगे ना। तो श्रमिक यही आशा और भरोसा के साथ में कल जा रहे हैं कि हमारा डुअर्स का डेवलपमेंट हो। अच्छा, 5 वर्ष तक आप राज्य केंद्र मंत्री रह चुके हैं, तो अचानक फिर आप इस पहल को लेकर के राजनीतिक माहौल में एक अलग चर्चा हो रहा है, इस विषय में क्या कहना चाहिए? देखिए, मैंने 5 साल जनता ने आशीर्वाद दिया और मैं दिल्ली सरकार में मंत्री भी रहा, और मंत्री बनने के बाद में मेरा फर्ज बनता था कुछ काम करके लाए। मैंने एक बहुत बड़ा, ऐसे छोटा मोटा काम तो किए हैं, फिर भी एक बड़ा काम था जो हमने करके लाए थे, 200 बेड का हॉस्पिटल। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के थ्रू हमारा मंत्रालय से, रेलवे मिनिस्टर से बात करके, अलीपुर डीआरएम के साथ बात करके, जीएम के साथ बात करके, वहाँ का रेल का ज़मीन हमने चिन्हित करके उसमें 200 बेड का हॉस्पिटल, मोटा मोटी सारा चीज़ कंप्लीट हो गया था। पेपर वर्क करने खाली एमयू साइन होना था। उसको भी हमारे बीजेपी कार्यकर्ता बोले, डिस्ट्रिक्ट स्टेट का, और अब बोले कि बीजेपी ही उसको बाधा डाला। आखिर में अगर इस प्रकार से डेवलपमेंट, जनता हमें चुन के भेजती है जनता का सेवा करने के लिए, काम करने के लिए, डेवलपमेंट करने के, अगर इस डेवलपमेंट का बाधा अगर हमारे अपना ही पार्टी करेगा तो फिर आगामी दिन कैसे हम उस पार्टी पर विश्वास करेगा? हमारा बस फीता काटना था, पेंडल बन गया था, और उसको बाधा देता है अपना ही पार्टी के लोग। तो किस भरोसा से हम उस पार्टी में काम करें? किसने? जनता उसको स्वीकार कर नहीं पा रहा है कि डेवलपमेंट को क्यों रोका जाता है। आपने चुन के भेजा जनता का सेवा करने, डेवलपमेंट में, अगर इस प्रकार से आप हर डेवलपमेंट में बाधा दोगे तो फिर हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे? कैसे जनता को हम समझाएंगे? हमारा पास ऐसा क्या इशू है जो हम जनता को चलो हमें जीता, কারা বাধা দিয়েছিল? এটা কোনো বিজেপির এমএলএ এমপি নাকি কোনো রাজনৈতিক কর্মী? देखिए, अभी वर्तमान एमपी भी है और वर्तमान विरोधी दल का नेता भी है। वो नहीं चाहता था कि ये 200 बेड का हॉस्पिटल है, इसमें क्रेडिट ऐसा उनको सोच है कि नहीं ये क्रेडिट जोन वाला लेगा। ये क्रेडिट का बात नहीं है। हम जनता ने तो इतना बड़ा चुन के खड़ा किया, और क्रेडिट का क्या बात है? जनता ने चुना है, मंत्री बनाया, तो हमारा काम था काम करके देने का। और जब हम काम किया तो हमारे ही लोग हम बाधा दिया, तो किस भरोसा के साथ में, किस आशा और भरोसा के साथ में उनसे काम करें? मान सम्मान, ये आदिवासी समाज के साथ, श्रमिक के साथ यहाँ आंख बंद करके बीजेपी के ऊपर भरोसा किया था, लेकिन आज आदिवासी समाज और श्रमिक को आज धोखा दिया। বিজেপির সাথে ডিসটেন্স তৈরি হওয়ার কি এটার বড় কারণ? यही है, क्योंकि सेंट्रल स्कीम आज चाय बागान में एक भी कुछ नहीं है। तो किस आशा, और कल के दिन में मैं उनके पास वोट मांगने जाऊं तो किस आशा और भरोसा के साथ में मैं क्या देने वाला? सेंट्रल ये दे रहा, वो दे रहा, ऐसे तो कुछ ही नहीं है। हमारा पास कुछ नहीं है कि मैं उनको श्रमिक को समझा सकूं कि केंद्र सरकार ये दे रहा, वो दे रहा। मेरा पास कुछ नहीं है। আপনি কি देने को কলকাতা कुछ যাবেন नहीं है। ঝান্ডা নেওয়ার জন্য মমতা ব্যানার্জির কাছ থেকে? झंडा तब होता है, झंडा पकड़ना मतलब जनता का डेवलपमेंट। जरूर आने वाला दिन हमारा डेवलपमेंट होता है, हमारा जनता का डेवलपमेंट होता है, जरूर आने वाला दिन सोच विचार करेगा। आपको भाजपा से ज्यादा अभी तृणमूल कांग्रेस के ऊपर भरोसा है क्या? देखिए, अभी वर्तमान राज्य सरकार उन्हीं का, इनका हाथ में है, सुश्री ममता बनर्जी के हाथ में है, वही हमारा गार्जियन है। और समस्या आज है तो वही गार्जियन है, तो उनके पास तो रखना पड़ेगा। আপনাকে কি আবার আমরা নীলবতী গাড়িতে দেখতে পাবো? अरे नीलबत्ती गाड़ी हमको चाहिए, हम इस मकसद से हम नहीं निकले हैं।
हमारा जनता का डेवलपमेंट होना चाहिए, हमें नहीं चाहिए नील गाड़ी। अच्छा जॉन जी, 2026 में विधानसभा चुनाव आता जाता है, हमारा मकसद है जनता का विकास होना चाहिए। जनता का विकास नहीं होगा, खाली नेता मंत्री बनेगा और जनता का विकास ही नहीं होगा तो फिर क्यों जाए। हम इसलिए नहीं, हम आज भी हमें दिल्ली अभी उनको लगा है कि नहीं अभी जोन का जरूरत है, मुझे नहीं चाहिए चेयरमैन। कोई भी प्रस्ताव दे रहा होगा, अभी भी दे रहा है कि ये देगा वो देगा, हमें नहीं चाहिए, हमारी जनता का विकास चाहिए। कब सरकार आएगा कब नहीं आएगा हमको नहीं आशा और भरोसा है कि आएगा और जनता का विकास करेगा। हम यहाँ लड़ते रहेंगे, आप ऊपर दिल्ली से मिल के करते रहोगे और हम यहाँ लड़ते रहें। हम अब लड़ाई के नहीं जाएंगे, मिल के काम करेंगे। यहाँ का प्रशासन, बीडीओ, डीएम है ना, एसपी जो भी है ना, प्रशासन के लेवल से बैठ के बातचीत करके और समस्या का समाधान। आपका साफ कहना है कि आपका साफ कहना है कि मैं पद को नहीं लगता है पद और कद के लिए आप नहीं जा रहे हैं, सिर्फ द्वास के विकास के लिए आप तृणमूल। देखिए तृणमूल में जा रहा है नहीं जा रहा वो आने वाला दिन बताएगा, है ना। और डुअर्स का विकास ही हमारा सर्वप्रथम प्राथमिक। আপনি কি মনে করছেন তাহলে বিজেপি খুব সহজেই রাজ্যে ক্ষমতা আসছে না? देखिए हमको नहीं लग रहा है जिस प्रकार से अभी यहाँ का जनता, यहाँ कौन नेता है बीजेपी का, ऐसे कौन बड़ा नेता है जिसको देख के चेहरा को देख के, हम चेहरा देखने के लिए नहीं है, हमारी जनता का उन्नति देखना है। हम यहाँ के कौन ऐसा लीडर है जो हमारा जनता का विकास लेके आएगा, ऐसा कौन नेता है। और डुअर्स में बताया, डुअर्स तरह में ऐसे कौन नेता है जो यहाँ विकास लेके आएगा। আচ্ছা, আপনি যে 6 শিডিউল বা সেপারেট ইউটি এই ডিমান্ড একসময় রেখেছিলেন, ওটা কি এখনো রাখছেন নাকি আপনি ড্রপ করেছেন ডিমান্ডটা? देखिए ये आने वाला दिन आप सबको पता चलेगा। हमारा जो ट्राइबल इशू है जरूर हम उनके पास रखेंगे। आने वाला दिन सबको देखते हुए हम लोग आगे এই ব্যাপারগুলো 6 শিডিউল বা সেপারেট ইউটির এই ব্যাপারটা কি आने সিএম এর वाला সামনে রাখবেন दिन আপনি? सब चीज हम बात करेंगे, सीएम के बोलबेन समय अपनी? के अनुसार से हम लोग कदम बढ़ना। अच्छा, एक और बात, पहला बैठक है, पहला बुलावा है। मैं माननीय सुश्री ममता बनर्जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज हमें आदिवासी होने के नाते और आदिवासी लीडर्स को आज बुलाया जा रहा है उस मंच में। मैं आदिवासी नेता होने के नाते आदिवासी की ओर से मैं उनको धन्यवाद, एज अ एक्स मिनिस्टर हिसाब से भी मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप कम से कम हमें बुलाया मतलब आदिवासी समाज को बुलाया, डुअर्स वासी को बुलाया, है ना। और इस कम से कम मेरा जो डुअर्स का जो समस्या, इस समस्या को सुनने के लिए उन्होंने जो आज नहीं तो कल तो सुनेगी, तो उन्होंने जो बुलाया उनके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद।